wasting any time, let's start with today's topic, that is recursion. तो सबसे पहले चीज़ recursion तो पता ही होगा. What is recursion? It is basically when a function calls itself again and again. Now why do we do this? Because we need to अगर कोई बड़ा problem है उसे easily solve करने के लिए हम वो problem को छोटे छोटे parts में divide करते हैं, right? So when we divide that problem in small parts and then we basically call that function again and again. So when a function calls itself, it's known as recursion. तो आज का first problem था subset sum. What is the problem statement? That you are given an array nums of n integers and you need to return all the subset sums of nums in a non-decreasing order. Okay. Before checking the code, I think let's first understand it. कि question में क्या दिया है? Just a second. I'll share my screen. Yeah. तो question में दिया है कि given array उसमें हमें जो भी subsets होते हैं एक array के उसका sum निकालना है and to print that sum in an increasing order. Non-decreasing means increasing order. So let's say for example I have so I have this one. I hope you can see my screen. तो ये एक array है मेरे पास 1,2. अब इसके सारे all the possible subsets are, first one will be an empty set, right? Because if you know the set theory, an empty set is a subset of every set. ठीक है? चाहिए तो मैं ऐसे denote करती हूँ इसे. This is a subset, then 1, then 2 and 1,2. These are all possible subsets. But अब question में क्या है? Sum of those subsets. तो इस empty set का sum होगा 0, इसका तो 1 है, इसका 2 है, and इसका sum is 3. So this is your array that you need to print. And as you can see, this is 0, 1, 2, 3. This is already in a sorted or let's say ascending order. ठीक है? तो अभी हम इसे recursion से कैसे solve करेंगे वो देखते हैं. ठीक है? Yeah. Now, before starting with the problem, इसमें क्या है कि इसका time complexity और space complexity discuss करते हैं. Time complexity discuss जब करेंगे तो इसमें as you can see, if you know the set theory, you must also know कि अगर एक set A है और उसमें n elements है, तो number of subsets of that set will be 2 raised to n, right? So if there is this set which has n elements, so number of subsets will be 2 raised to n. And that's why the time complexity, because if you are actually finding all the subsets of that particular set या array जो भी है, तो उसका जो time complexity है that will be O of n into 2 raised to n. So and इसका जो space complexity है वो भी O of n, हमें O of n हम यूजुअली लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें O of n नहीं होगा. क्यों वो देखते हैं. ठीक है? तो अभी मैं एक रिकर्सिव ट्री बनाऊंगी, उससे आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करें. बट उसके पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो जाता है कि हम बेसिकली एक पावर सेट जो होता है, पावर सेट इज बेसिकली सारे सबसेट्स का वो सेट होता है, दैट इज नोन एज द पावर सेट. तो हम पहले एक पावर सेट निकालेंगे. पावर सेट निकालने के बाद में उसका जो भी बिट मैनिपुलेशन करके उसका जो भी सम है वो करके फिर उसे सॉर्ट करके हम उसे डिस्प्ले करेंगे. ठीक है? बट द ऑप्टिमल सोल्यूशन विल बी, अभी लेट्स से ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करना पड़ेगा. व्हाई? टू जनरेट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स. ठीक है? तो अभी मैं एक रिकर्सिव let's say I can basically think of a recursive solution which decides to either select or not select a particular index. ठीक है? तो let's say मेरे पास
3 1 4 एक एरे दिया है यूजर ने, ठीक है। तो what I can do is I can think of a recursive solution which will decide कि मुझे इधर 3 को सिलेक्ट करना है, फिर मुझे नहीं करना और फिर मुझे करना है। तो मेरा ये एक सबसेट बन गया कि मैंने 3 को सिलेक्ट किया, फिर मैंने 1 मतलब यू नो या सो what I'll do is for every index I will get my subset at the end. अब कैसे होगा देखते हैं कि फर्स्ट अज्यूम दैट यू आर एट द 0th इंडेक्स, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू है 3, ठीक है। अब उसमें क्या करूंगी मैं, आई विल ईदर डिसाइड टू पिक दैट एलिमेंट विच इज 3 और आई विल डिसाइड टू नॉट पिक दैट एलिमेंट। तो इफ आई एम पिकिंग दैट एलिमेंट, just एक second. Yeah, so if I'm picking that element, मैं मेरा जो sum का value है, I will increase that sum का value. अब why am I doing this? अभी 3 1 4 है, राइट। तो उसका एक सबसेट हो सकता है 3, उसका एक सबसेट हो सकता है 3,1, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में वो सबसेट का सम चाहिए। तो इसीलिए दिस विल बी 4, राइट, एंड इसका सम तो 3 ही रहेगा। इसीलिए I will use an extra variable called as sum and I will initialize it to 0, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए 3 1 4 जो एरे लिया है वही ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने 3 1 4 लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, एक पॉइंटर लूंगी विच इज एट द इंडेक्स 0 एंड एक सम वेरिएबल लूंगी जो बेसिकली जो भी सबसेट का सम है वो कैलकुलेट करेगा। तो हम कभी भी सम कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी इनिशियलाइज द सम इक्वल टू 0, राइट। सो मेरा ये 3 1 4 है, 3 1 4 and my sum is initialized to 0 फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में मेरा पॉइंटर है एट 0th इंडेक्स 3 पे। नाउ आई विल ईदर पिक दैट 3 और आई वोंट पिक दैट 3। सो इफ आई एम पिकिंग दैट 3, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वापस यही जो फंक्शन है उसी फंक्शन में रिकर्सिव कॉल करेगा, यानी वो वही फंक्शन कॉल करेगा। अभी अगर मैंने पिक किया तो मूव टू द नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करो, ठीक है, एंड सम की वैल्यू अपडेट करो। क्यों अपडेट करो, क्योंकि मैंने वो एलिमेंट को पिक किया है मेरे सबसेट में रहने के लिए। सो अगर मेरे सबसेट में 3 है तो मैं ऑब्वियसली सम में 3 को ऐड करूंगी, राइट। सो माय सम, आई एम राइट नाउ राइटिंग इट एज s राइट नाउ, सम बिकम्स 0 प्लस दैट वैल्यू ऑफ let's say that element 3, right? So sum becomes 3 and the pointer will move to the next index. That's why I've pointed at 1, ठीक है। But let's say I decide not to pick that 3. अगर मैंने सोचा कि मुझे मेरे सबसेट में वो 3 नहीं चाहिए, तो I will still move the pointer to the next element, but इस केस में sum की वैल्यू चेंज नहीं होगी। Why? Because I'm not selecting that 3 be in my subset, right? Sum will be equal to 0. Now अब जाएंगे नेक्स्ट इस पे। अभी वो 1 पे आया, 1 पे वापस वो रिकर्सिव कॉल होगा, राइट। वापस वो फंक्शन कॉल होने के बाद वो सेम थिंग चेक करेगा कि इधर मैं 1 में ऐड करूंगी या फिर मैं ऐड नहीं करूंगी। एंड और एक चीज, यहाँ पे पहले लेफ्ट वाला साइड होगा एंड फिर राइट वाला, लाइक पहले लेफ्ट वाला साइड देखेंगे फिर राइट वाला साइड होगा, ठीक है। सो either I will add that 1 in my subset or I won't add that 1 in my subset. So if I am adding that 1,
सो अभी मेरा जो 314 था, अब मेरा पॉइंटर आगे वाले इंडेक्स में बढ़ेगा एंड माई सम की वैल्यू विल बेसिकली इंक्रीज टू 4. वाई 4? बिकॉज पहले सम का वैल्यू था 3. नाउ आई डिसाइडेड टू एड द एलिमेंट विच इज 1 इन माई सबसेट. अगर मैंने 1 को ऐड किया 3,1 तो मेरा इसका क्या बोलते हैं, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? 3 plus 1 is 4. That's why my sum increased to 4. But let's say I decided to not add the element 1 in my subset. Suppose मैंने सोचा कि नहीं, मुझे 3 ही रखना है. So मेरा अब सम का वैल्यू क्या रहेगा? Anyone? Write it in the chat, or you can also unmute and say. 3, करेक्ट, वेरी गुड. तो मैं बेसिकली अगर मैंने सोचा कि मुझे 1 को सबसेट में नहीं ऐड करना, तो मेरा सम का वैल्यू 3 रहे पहले जैसा, राइट? सो अभी मेरा 314 एंड ऑब्वियसली आई एम मूविंग द पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंडेक्स एंड सम का वैल्यू मेरा रह रहा है 3. ओके, अभी मेरा पॉइंटर गया 4 पे, तो वापस सेम चीज चेक करेगा. इट विल ईदर पिक दैट वैल्यू और ईदर इट विल not pick that value. So if it picks the value 4, so मेरा 314 पॉइंटर इसके नेक्स्ट इस पे चला जाएगा एंड मेरी सम की वैल्यू होगी 4 plus 4 which is 8. इस केस में क्या वैल्यू होगी? It's not picking. Yeah, it's just keep going until condition is false. इसमें false condition नहीं है. अभी basically what we are doing, we are not checking if else. We are not putting if else here. What we are doing is we are making recursive calls. तो इसमें दोनों चेक हो रहा है कि मुझे 3 को ऐड करना है या फिर मुझे 3 को नहीं ऐड करना है. वो दोनों चीजें हम करेंगे एंड उसके बाद वो फॉल्स नहीं आएगा. वी आर बेसिकली इटरेटिंग थ्रू द होल 314 वाला एरे एंड जब वो उसके बाहर चला जाएगा तो इट विल गो बैक टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल. तो ऐसा एज सच कंडीशन फॉल्स नहीं होगा. इट विल मूव टू टिल द एंड ऑफ द एरे एंड जब वो एंड तक पहुंच जाएगा देन इट विल मूव टू द मेन फंक्शन. जो यही जो हम फंक्शन एग्जीक्यूट करें फंक्शन पे वो वापस जाएगा. हाउ? लेट्स सी. अभी आई गया है, अभी जैसे एस सम इज 8. अभी मैं आई विल डिसाइड आई एम नॉट टेकिंग द 4 इन माय सेट. सो मेरा सम रहेगा पहले का जो भी था 4 था. माय सम विल बी 4. 314 pointer is at sorry, the pointer is after 4 and my sum remains as 4. So now if you see इधर अभी ये पॉइंटर बाहर आ गया एरे के, तो अभी वो क्या करेगा, वो वापस अभी दोनों लेफ्ट एंड राइट कंडीशंस हो गए. यानी एक बार मैंने पिक किया, एक बार मैंने पिक नहीं किया, तो इट विल मूव टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल. ठीक है, तो ये दिस थिंग मूव्स टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल. अब प्रीवियस रिकर्सिव कॉल में क्या है, ये वाला I'll use another pen. या ये वाला जो दिख रहा है, ये दिस इज द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल. अब क्या इसमें दोनों लेफ्ट और राइट कंडीशन हमने चेक की. वी चेक द वन wherein we picked, then we picked 1 and we picked 4 and in that we did not pick 4 and उसके बाद वो दोनों लेफ्ट एंड राइट कंडीशन चेक हो गई. उसके बाद वी आर मूविंग टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल जिसमें हम 1 को चेक कर रहे थे. उसमें 1 को कंसिडर किया और उसका सारा चेक किया उसके बाद वाले का. बट हमारा ये वाला राइट साइड वाला कंडीशन बचा है, तो अभी वो एग्जीक्यूट होगा. तो इस कंडीशन में वी डिड नॉट पिक 1. ओके, व्हाट वी डिड, वी मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज 4 एंड उसको हम वापस यही करेंगे. either we'll pick that 4 or either we won't pick that 4. So if we are not if we are picking that 4, as I said, पहले हम लेफ्ट वाला कंडीशन देखते हैं. तो लेफ्ट वाला कंडीशन इज बेसिकली वी आर taking that element in our subset. So if we are picking that 4, तो मेरा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा एंड मेरा सम इंक्रीज होगा. इधर मेरा जो सम था दैट वाज 3, राइट? तो अभी मेरा सम क्या होगा, 3 plus 4 which is equal to 7.
इस केस में क्या है कि मेरा 314, इस केस में वी आर नॉट पिकिंग दैट 4 का वैल्यू, सो मेरा सम विल रिमेन एज 3 ओनली. ओके, नाउ बिकॉज द पॉइंटर moves outside the array, मतलब अभी कोई there is no element left to be added in a subset, we'll move to the previous recursive call. तो ये आ गया वापस इस पे. अब ये जब इस पे आ गया, इसमें दोनों कंडीशंस हो गई, एक तो हमने 1 को सिलेक्ट किया और एक में हमने नहीं सिलेक्ट किया, तो इसकी दोनों कंडीशंस चेक होगी. नाउ दिस विल अगेन मूव टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, ये वाला 3 वाला. अब 3 वाले में यूजिंग द ब्लू पेन, 3 वाले में हमने येस वाला जो कंडीशन था वो चेक कर लिया, बट नो वाला कंडीशन हमने अब तक नहीं किया. सो लेट्स डू दैट. ठीक है, सो इसमें 3 में we are considering 3, वो चेक हो गया. Now next is we are not considering 3. So when we are not considering 3, we are moving to the next element which is 1. ठीक है, तो either we are selecting that 1 or we are not selecting that 1. Same process again. Okay, so if we are selecting that 1, I'll just draw this थोड़ा ढंग से. Yeah, so this is 314. ठीक है, तो इस केस में अभी 1 पे आ गया एंड सम मेरा इस केस में 0 था, तो 1 में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ या फिर मैं नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ. सो इफ आई एम सिलेक्टिंग दैट 1, तो व्हाट आई एम डूइंग, पॉइंटर मूव करूंगी मैं 314, 4 पे पॉइंटर मूव करूंगी एंड सम की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी 1 पे, क्योंकि मैंने 1 ऐड किया है. बट इफ आई डिसाइड टू नॉट पिक दैट 1, देन मेरा सम का वैल्यू रहेगा प्रीवियस वाला जो है 0 इस केस में, एंड मेरा पॉइंटर एज यूजुअल मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पे या नेक्स्ट इंडेक्स पे. बट सम, तो इस केस में इंपॉर्टेंट है सम का वैल्यू. नाउ आई जस्ट ड्रॉ दिस अगेन हियर. 314, 4 पे पॉइंटर था, सम वाज 1, एंड हियर 314, 4 पे पॉइंटर, सम वाज 0. ठीक है, इसमें पिक किया था, इसमें पिक नहीं किया था, तो पॉइंटर है 4 पे. अभी इसमें 4 को पिक करेंगे या फिर 4 को पिक नहीं करेंगे. तो अगर हम 4 को पिक कर रहे हैं तो मेरा पॉइंटर था 314, वो उसके नेक्स्ट पे चला जाएगा एंड मेरा सम हो जाएगा 1 + 4, दैट इज 5. If I'm not picking that 4, then my pointer still moves to the next element and sum becomes sum is not changing, that is it's 1 only. अभी बिकॉज इट इज मूविंग टू द पॉइंटर, मतलब जहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, यानी वो एरे के बाहर मूव कर रहा है, तो इट विल गो बैक टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, राइट. इट गो बैक टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, ये वाला. क्या इसमें लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन चेक हुई है, यस और नो? Left and right means we pick the value 1 in this case and we did not pick the value 1 in this case. So did not pick वाला case बाकी है, right? You can type in the chat or you can unmute as well. Okay, so I'm assuming that you understood. Moving forward to this part where we did not select the value which is 1. Okay, इसमें I will move to the next element, that is 4. 4 में either I'm selecting that 4 or either I'm not selecting that 4. So if I'm selecting that 4, my value of sum becomes, पहले तो 314 पॉइंटर 4 के आगे जाएगा, sum का value हो जाएगा 4. इस केस में 314, if I'm not selecting it, sum का value रहेगा 0 ही रहेगा. ठीक है, एंड पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा. अब पॉइंटर इसके बाहर आ चुका, तो ये वापस प्रीवियस रिकर्सिव कॉल में जाएगा. अभी ये दोनों लेफ्ट और राइट, यानी आई कंसिडर्ड 1 या फिर आई डिड नॉट कंसिडर 1, ये दोनों कंडीशंस हो गए. अब उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे जो मैंने बनाया, ये दोनों कंडीशंस चेक होने के बाद इट बेसिकली मूव प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, जो है ये 1 वाला रिकर्सिव कॉल होने के बाद इट मूव्स टू द सबसे ऊपर वाला रिकर्सिव कॉल जो सबसे मेन वाला था, एंड वो भी चेक हो गया
तो हमें बेसिकली सारे सबसेट्स के सम का मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि मतलब इन दिस केस लेट्स सी, रेड से लिख रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 वैल्यूज थे, राइट। तो मैंने एक को मतलब यहाँ पे बेसिकली सिलेक्टेड, ठीक है, या फिर आई डिड नॉट सिलेक्टेड या फिर आई सिलेक्टेड इट, ऐसा करके हो गया। तो वैसे करके मेरा जो सबसेट का जो सम है वो एक एरे में मैं स्टोर करते जाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे मैं जब आई तो यहाँ पे सम की वैल्यू थी 8, तो वो 8 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सम की वैल्यू आई थी 4, वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आया था 7, 3, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज मेरी एक एरे में मैं स्टोर करूंगी, which is basically the answer का array. Let's see the code now, ठीक है। But I hope you understood the recursive tree जो मैंने बनाया कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। Yes or no? Yeah, wait. तो एक सेकंड मैं कोड दिखा देती हूँ एक बार। या सो इसमें ये कोड में there is this, yeah, so there are two functions that I created. One is void subsets sum, जो basically हर एक subset का sum calculate करेगा। Next function is the subset sum, नाम same है लेकिन इसमें vector int लिखा है, which is the return type of that function। मतलब ये basically जो मेरा final subset है sums का, वो सॉरी जो सेट है मेरा, जो भी सारे सबसेट्स के जो सम का जो सेट है या फिर डेटा स्ट्रक्चर है, वो प्रिंट करने के लिए ये एक फंक्शन है। तो पहले ये वाला फंक्शन देखते हैं, void offset sum। इसमें 4 पैरामीटर्स है। int ind, ind is basically the it represents the current index of the element। next is vector int and num। next is vector int and answer and int sum। so what is this num and answer? num is basically the array that we are taking from the user, जो भी user array input करेगा वो है। answer will be the array that will contain the सबसेट्स का सम, ठीक है। तो एक array जिस, तो एज आई वाज सेइंग कि अगर मेरा जो भी हेडर जो टेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, इफ इट इज num dot size, num dot size is the size of the input array। तो अगर मेरा साइज है लेट्स से 3, तो num dot size प्लस 1 यानी 4 हो गया, राइट। 3 + 1 4। तो अगर मेरा इंडेक्स की वैल्यू 4 है, यानी वो जो हमने देखा कि वो एंड में जा रहा है एरे के, तो एंड में जा रहा है मतलब, तो अगर वो लास्ट में जा रहा है तो उसके आगे कुछ है नहीं, तो यू जस्ट पुश बैक द सम, जो भी सम हमने निकाला, यू पुश दैट इनटू द आंसर, इज द एरे ऑफ सब लाइक ऑल द सबसेट्स का सम, ठीक है। तो एंड उसके बाद रिटर्न, उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग अ रिकर्सिव कॉल। what is that recursive call? That is basically two things, दो बार recursive call किया है। जैसे मैंने बोला, either I'm picking it or either I'm not picking it। so when I'm picking that particular element, I am writing subset sum, I'm passing the value index plus 1। why ind plus 1? because जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे मैंने दिखाया था 3 1 4 था, तो I am picking it, फिर move that pointer to the next element 1, तो इसीलिए मैंने ind plus 1 किया, so that it will move to the next element after you know adding the sum, ठीक है। उसके बाद num, जो भी array है ओरिजिनल array वही रहेगा, आंसर एंड sum plus num of index -1। अभी इधर ind -1 क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा इंडेक्स, इफ यू सी, इट्स नॉट एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इफ यू सी नीचे वाला फंक्शन, विल गेट टू दैट, बट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एंड इंडेक्स का एरे का 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने ind -1 लिखा है। क्योंकि अगर सपोज फिफ्थ एलिमेंट है, उसके लिए ind 5 है, लेकिन वो फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स होता है, दैट्स रिटन ind -1, राइट।
तो वही एरे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया 314 वाला, 3 में मैं दो बेस केसेस है, इधर आई एम सिलेक्टिंग दैट 3 और इधर आई एम नॉट सिलेक्टिंग दैट 3. इफ आई इंडेक्स एम जीरो सिलेक्टिंग या इंडेक्स जीरो इंडेक्स इक्वल टू जीरो भी तो पुट कर सकते थे. हाँ पुट कर सकते हैं, you can, there's no problem. So I put 1, that's why I'm writing, I'm telling you कि index -1 किया. So either I'm selecting that 3 or I'm not selecting that 3. If I'm selecting that 3, I will add that 3 जो मेरे सबसेट में रहेगा to the sum, correct? इसीलिए फिर sum plus num of index -1 लिखा है. सेकेंड था मेरा केस कि मैं वो 3 को ऐड नहीं कर रही मेरे सबसेट में. तो अगर मैं 3 को सबसेट में ऐड नहीं करी तो मैं ऑब्वियसली सम में भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो 3 मेरे सबसेट में नहीं रहेगा. इसीलिए जो सेकेंड लाइन लिखा है सबसेट सम int+1 num आंसर सम, तो उसमें सम की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग 2 रिकर्सिव कॉल्स हियर टू चेक ईदर you are picking it or either you are not picking that particular element. अभी मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन है, उसमें अगेन एज आई सेड इंडेक्स इक्वल टू int1 लिया है मैंने. व्हाई आई हैव टेकन 1, क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 1 है, सेकंड एलिमेंट है तो वो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, इसीलिए आई हैव टेकन 1, बट यू कैन टेक 0 एज वेल, देयर इज नो इशू अकॉर्डिंग टू मी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ int को 1 पे, वेक्टर इंट आंसर एक वेक्टर बना रही हूँ, एरे ले रही हूँ आंसर, उसे इनिशियलाइज कर रही हूँ. फिर सबसेट सम, अब इधर मैं कॉल करूंगी वो फंक्शन को विच इज अ रिकर्सिव फंक्शन. उसमें मैं int डालूंगी, नम डालूंगी आंसर एंड 0. क्यों? क्योंकि सम मेरा हमेशा इनिशियलाइज टू 0 रहता है, इसीलिए मैं 0 डालूंगी. एंड उसके बाद मैं सॉर्ट करूंगी. फाइनली सॉर्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला है कि नॉन डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना, राइट? इसीलिए मैं आंसर को विच स्टोर्स ऑल द सबसेट का सम्स, उसे मैं सॉर्ट करके फिर रिटर्न करती हूँ. सो दिस वाज सबसेट सम वाला वो प्रॉब्लम. वो हमने सबसेट सम्स के अंदर लास्ट में रिटर्न क्यों लिखे? कौन सा वाला? सबसेट वॉइड सबसेट सम्स वाले फंक्शन में लास्ट में रिटर्न लिखा है. हाँ, क्यों? अच्छा, ओके, यू आर आस्किंग कि वो वाले फंक्शन में हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड. तो बेसिकली क्या है कि जो भी मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक सबसेट को निकाल रहे हैं एंड उस सबसेट का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो जब दोनों मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक बार वो एलिमेंट को ले रही हूँ या फिर मैं दूसरे इसमें एलिमेंट को नहीं ले रही हूँ. तो उसके बाद मेरा जब 314 एरे एग्जाम्पल ले लो, तो 3 पहले एलिमेंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, 4 के बाद पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट कुछ है ही नहीं. तो वो इट विल मूव बैक टू द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल. प्रीवियस रिकर्सिव कॉल में वो क्या चेक करता है कि मेरे क्या दोनों कंडीशंस रीच हुए या नहीं, यानी when I'm including that element or I'm not including that element. That's why I'm using this line as return. Why? Because it is basically used to end जो भी current execution है function का, वो end करने के लिए मैं वो return लिख रही हूँ. तो वो कब end होगा? जब मेरा दोनों लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला रीच हो चुका है. यानी एक बार मैंने वो 3 एलिमेंट को लेके सबसेट बनाया या फिर मैंने वो 3 एलिमेंट को नहीं लेके अगर सबसेट बनाया. समझा? नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने एक बार 3 को लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके 3 को लेने के बाद फिर मैं चेक करूंगी 4 का, 314 इज माई एरे, ठीक है. तो मैंने 3 को लिया एंड उसके बाद आई चेक, फिर 1 को चेक करूंगी, 1 को लूंगी नहीं लूंगी, फिर 4 को वैसे ही करूंगी, 4 को लूंगी नहीं लूंगी. अभी व्हेन आई मूव बैक टू प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, व्हाट आई चेक कि क्या मैंने एक बार 3 को लिया, बट डिड आई चेक कि मैंने 3 को ना लेके जो सबसेट्स बनाया है वो कंप्लीट किया या नहीं. इसीलिए आई यूज द वैल्यू, नॉट वैल्यू, द सेंटेंस रिटर्न. ये
यही लास्ट केस में रिटर्न मैंने नहीं लिखा, इसकी वजह से कोड पास नहीं हो रहा था। अब पास समझा? हो रहा है? नहीं, ये रिटर्न मैंने लास्ट में नहीं लिखा था, बाकी फंक्शन सेम ही था, इसलिए पास नहीं हुआ था फंक्शन मेरा। अभी भी हो जाएगा। तो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है। हो रहा है क्या? अभी रन करके देखता हूँ थोड़ी देर में, वो लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट है। ठीक है। या जस्ट रिमूव दैट रिटर्न वाला एंड एक बार चेक कर लेना। So if you don't have any other doubt, let's see the second wala question. So this was the second question for the day. Subsets 2. It's nothing but just एक array given है यूजर से, वो array का जो भी possible subsets है, वो सारे possible subsets में से सिर्फ unique subsets को print करना है. You should remove all the duplicates. तो let's say इधर ही दिया है, right? Yeah. So for like example, for the given array, if array is equal to 1 comma 1 comma 3, तो आंसर, तो इसमें क्या है, 1 एंड 1 दो सेम एलिमेंट्स है, तो मेरे पॉसिबल ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? इट विल बी, एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 3, फिर 3 तो होगा ही, 1,1,3 भी होगा, लेकिन और एक 1,3 होगा, राइट? पहले 1 के साथ मैंने 3 को किया, फिर दूसरे 1 के साथ मैंने 3 को 3 का सबसेट बनाया, बट बिकॉज इट इज सेम, तो वो मुझे प्रिंट मैं नहीं करवा सकती, ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन में आई कुड हैव यूज्ड जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्रोच किया कि ईदर आई एम selecting that value or I'm not selecting that value. पर उस केस में क्या होता है, we are not handling the duplicates in that case. Okay. तो इसीलिए there is a little, क्या बोलते हैं, different approach I'd rather say. But recursion, using recursion ही है. So before showing you the code, let's see the tree वाला, recursive tree. Wait a second. I'll share my screen. Yeah. So in this case, let's take an array that is ठीक है, ये array है और इसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे, राइट? एंड उन सबसेट्स में बहुत सारे डुप्लीकेट भी बन सकते हैं, लेकिन हमें उन सारे डुप्लीकेट्स को निकालना है. सो वी हैव टू डू रिकर्जन इन सच अ वे कि एट एवरी स्टेप इट बेसिकली क्रिएट्स अ लिस्ट, ठीक है? तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एम्प्टी लिस्ट या फिर एन एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक 0 साइज का लिस्ट बनाएंगे, फिर हम एक साइज का लिस्ट बनाएंगे, यानी सबसेट, लिस्ट मीन्स सबसेट, तो 0 साइज का बनाएंगे, फिर 1 साइज का बनाएंगे, फिर 2 साइज का बनाएंगे, ठीक है? सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. तो मैं क्या करूँगी, एट पहले तो मैं ऑब्वियसली एट 0th इंडेक्स रखूँगी, जो भी मेरा पॉइंटर है उसे, फिर मैं तो ये जो बॉक्स दिख रहा है उसमें मैं एलिमेंट्स को ऐड करते जाऊंगी, ठीक है? दैट विल बी माय सबसेट बेसिकली, ठीक है? तो अभी मेरा एट इंडेक्स, क्या बोलते हैं, 0, नॉट इंडेक्स 0, बेसिकली 0 साइज का जो है उसमें वो एम्प्टी होगा, राइट? एम्प्टी सबसेट
जो होता है, दैट इज मल्टी सेट, दिस इज साइज 0। ठीक है, अब ये मुझे क्या करना है, अभी वन साइज का, साइज 1 के सबसेट्स बनाने हैं मुझे सारे, ये एरे में। तो मैं क्या करूंगी, एट 0 इट्स इंडेक्स मैंने जो रखा है वो मैं ये करूंगी, ऐड करूंगी अपने बॉक्स, बॉक्स मीन्स एक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वन, एंड नाउ आई विल मूव माई पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंडेक्स। तो मैं लेफ्ट साइड पे जो लिख रही हूँ दैट इज बेसिकली कौन से इंडेक्स पे मूव करना है वो वैल्यू है। ठीक है, तो अभी 1 लिखा है तो मैं 1 पे मूव करूंगी, एंड 1 पे मूव करने के बाद उस पर वैल्यू है 2, तो मैं 2 डाल दूंगी। 2 डालने के बाद आई बेसिकली आई शुड मूव माई पॉइंटर टू इंडेक्स नंबर 2, राइट। बट मैं मूव करूंगी सेकेंड इंडेक्स पे, बट कैन सी की इसमें वैल्यू है 2, सो एंड 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एक डुप्लीकेट है, तो वो मैं ऐड नहीं करूंगी, राइट। तो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट इस पे जाऊंगी, नेक्स्ट इस पे भी मेरा है 2, तो वो भी मैं ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट इस पे है 3। ठीक है, तो इस पे इंडेक्स नंबर लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। what I should do, I should directly move to the index 4 and उस पे वैल्यू है 3, वो मुझे ऐड करना है। ये सारे जो भी है साइज 1 के हैं। एंड अगेन इसके बाद इंडेक्स 5 पे मूव नहीं करूंगी क्योंकि उस पे 3 है, राइट। तो ये हो गया मेरा सारे साइज 1 का, और उसके बाद इंडेक्स 6 पे 6 कुछ है ही नहीं, तो इट विल मूव आउट। अब हम करेंगे ये वाला साइज 2 का। ठीक है, साइज 2, या उसमें क्या करेंगे, उसमें अभी एक ट्री, लेट्स लेट्स मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले था 0 और एम्प्टी था ये, फिर उसके बाद इट मूव टू 1, एंड उसमें हर एक सिंगल सिंगल एलिमेंट का मैंने साइज 1 का मैंने बनाया। ठीक है, तो उसमें मैंने इसका बनाया 2, सेकेंड इंडेक्स पे मूव किया, फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या बोलते हैं 4 पे मूव किया, और उसमें 3 ऐड किया। ठीक है, तो ये था साइज 0 का, ये था साइज 1 का। नाउ आई विल मेक साइज 2 वाला। साइज 2 वाले में क्या है, अभी अभी था इधर जो इंडेक्स गिवन है, दिस इज दिस बेसिकली पॉइंट्स की तुम्हें किस इंडेक्स पे जाना है। तो ये जो 1 है मींस आई हैव टू चेक द फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा वैल्यू है 2, राइट। सो मैं वो ये जो 1 है उसमें मैं 2 ऐड करूंगी। ओके, थोड़ा छोटा लिखती हूँ। अभी मैं 2 ऐड करूंगी क्योंकि 2 पहली बार आ रहा है, तो वो मैं ऐड करूंगी ही, उसके बाद फिर मैं डुप्लीकेट में चेक करूंगी, राइट। तो मैंने 2 ऐड किया, एंड नाउ आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंटर, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट इंडेक्स। तो आई एम राइटिंग हियर 2। ठीक है, उसके बाद मैं 2 पे गई, 2 इंडेक्स पे तो सेम वैल्यू मिली मुझे 2 विच इज द डुप्लीकेट, तो मैं वो ऐड नहीं करूंगी अपने सबसेट में। उसके बाद मैं 3 पे गई, तो उस पर भी मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो है सेम डुप्लीकेट है। अब मैं क्या करूंगी, फोर्थ पे मुझे 3 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आई ऐड दैट, एंड मुझे साइज सिर्फ 2 का चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई आई डायरेक्टली मूव टू क्या बोलते हैं अपना, इंडेक्स 4। यस, राइट। लेकिन इंडेक्स +1 आएगा 5। हाँ, 5 आएगा, राइट। तो 5 पे वो चेक करेगा, एंड 5 पे क्या बोलते हैं 3 है, तो वो नहीं ले। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वन, इसमें 2 है, तो सेकेंड इंडेक्स से चेक करेगा। सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है 2, एंड बिकॉज ये पहली बार हम कर रहे हैं ऐड, तो ये 2 और 2 ऐड होगा ही, राइट। 2 नहीं आएगा, उसके बाद ये जाएगा 3 पे, 3 पे है 2, या
सो यहाँ पे 3 पे है 2, तो वो हम 2 ऐड करेंगे नहीं। उसके बाद जाएगा वो 4 पे, 4 पे है 3, सो वो ऐड होगा, राइट? तो वो 2 एंड इधर 3 ऐड होगा। अब हो जाएगा नेक्स्ट 5 पे पॉइंट करना चाहिए, इसीलिए इधर 5 आएगा। अब 5 पे भी 3 है, इट्स डुप्लीकेट, सो इट वोंट टेक। सिमिलरली फॉर दिस पार्ट, इधर इधर लिख दो, दिस इज 3 एंड इंडेक्स इज एट, इट्स पॉइंटिंग एट 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे मेरा वैल्यू है 3, तो वो तो मैं ऐड करूंगी क्योंकि वो डुप्लीकेट का चीज सवाल आता ही नहीं है इसमें। उसके बाद जाएगा वो 5th पे, ठीक है? 5th पे जब वो जाएगा तब वो 3 वापस है, तो वो डुप्लीकेट है, राइट? इसके बाद होगा नहीं। सेम थिंग नेक्स्ट चीजों के लिए आएगा, नेक्स्ट थिंग के लिए। अभी ये था साइज 2 का, सेम थिंग गोज फॉर साइज 3 एज वेल, ठीक है? साइज 3 के लिए इस और इट विल चेक फॉर, ठीक है, 1 2 एंड अब नेक्स्ट सेकंड, इस पे जो था सेकंड इंडेक्स पे था 2, तो वो तो ऐड होगा ही, 2 ऐड होगा एंड इट विल मूव टू इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 3 पे भी है वैल्यू 2, तो बिकॉज ऊपर 2 ऐड हुआ है और 2 इक्वल है, तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद इट विल मूव टू इंडेक्स 4, तो वो ऐड हो जाएगा क्योंकि उस पर 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड इट विल मूव टू इंडेक्स नंबर 5, ठीक है? इंडेक्स नंबर 5 पे वापस जब जाएगा तो उधर 3 है, तो वो ऐड नहीं होगा। सेम थिंग गोज फॉर दिस वन, इसमें क्या है, इंडेक्स 5 पे है वो 3, तो वो ऐड हो ही जाएगा 1 3 3, क्योंकि हमें साइज 3 का चाहिए, एंड मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स 6। बस 6 कुछ है ही नहीं, तो आगे बढ़ेगा नहीं। अभी सेम थिंग गोज फॉर हियर, इधर आता है 2 2 एंड एलिमेंट इज एट इंडेक्स 3, तो 3 इंडेक्स पे एलिमेंट है 2, तो वो एक बार ऐड हो जाएगा। In this way, we are avoiding all the duplicates and we are creating subsets, all unique subsets basically, right? And checking, moving to the next element. तो ये था 3 पे था, we'll move to 4, 4 पे उसे सेम दिखेगा नहीं दिखेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई इट टेक 2 2 एंड 3 एंड उसके बाद इट विल मूव टू 5 एंड 5 पे वो सेम दिखेगा, तो वो लेगा नहीं। सिमिलरली तुम इसके लिए निकाल सकते हो और फिर इसके लिए निकाल सकते हो साइज 3 का। ये होने के बाद ऐसा साइज 4 होगा, साइज 5 होगा और साइज 6 होगा। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 6 इन दिस 1 2 5 इंडेक्सेस है, राइट? सो n इज इक्वल टू 6। तो ऐसे हमें सबसेट्स मिलेंगे फ्रॉम साइज 0 टू साइज 6। ओके, तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। इसके बाद आई थिंक समझ जाएगा कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। So yeah, here again what we are doing, we are creating two what do we say, we are creating two functions। एक तो है solve and दूसरा है unique subsets। Unique subset is again returning, that's why I've written vector here। this is void solve, कुछ ऐसे such Screen is not visible. oh. Just give me a second, okay? Is it not visible, the screen? It's visible. Alright, thanks. Just give me a second. I'll put laptop on charge. Yeah. So I think you've posted it out. So in the first case, we are taking the next element, and in the next, we are only taking the unique element. Yeah, in the first case, हम वो ऐड करेंगे ही because वो पहली बार हम ऐड कर रहे हैं, right? उसके बाद we will check if it's not duplicate,
then you'll add it. If it's duplicate, you won't add it in the subset. Okay, let's see how. Code में I think समझ में आ जाएगा. तो इधर फंक्शन है void solve. उसमें again we are taking 4 parameters. One is int ind index. फिर array है. Array जो भी user देगा वो. Then there's vector and ds. What is that? It is a data structure basically that will hold all your unique subsets. Sorry, it won't hold your unique subset. It is basically the subset that you're constructing. Answer is the one that will hold all your unique subsets. ठीक है? तो हम एक एक करके subset बना रहे हैं, right? हम check कर रहे हैं कि ये element है या नहीं, and then we are making that subset. तो वो जो बना रहे हैं, the subset that we are constructing is nothing but your DS, that is data structure. तो first base condition क्या है यहाँ पे? Answer dot pushback DS. As I said, pushback is a function. Yeah. तो यहाँ पे दो फंक्शन जैसे मैं बोल रही थी, आंसर डॉट पुशबैक ds, फिर int n इक्वल टू array डॉट साइज, जो भी इनपुट है वो उसका साइज निकालेंगे. फॉर int I इक्वल टू ind, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस. ठीक है. एंड उसके बाद इफ कंडीशन पे जा रहा है. अभी क्या हो रहा है आई विल टेल यू. या तो इधर क्या लिया है हमने, हम फॉर लूप ले रहे हैं, उसमें i इक्वल टू इंडेक्स रख रहे हैं. अब i इक्वल टू 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, राइट? तो ये जब वापस क्या बोलते हैं, वापस ये फंक्शन जब कॉल होगा तब वो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है हमें, बट लेकिन उस इंडेक्स से, पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करना है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग i इक्वल टू 0 हियर, बट इंस्टेड आई एम राइटिंग i is equal to ind. ठीक है. and I is less than n. Why? Because वो पूरा array को traverse करेगा and I plus plus. Okay. Now, if I is greater than ind and array of I is equal to array of I minus 1, continue के बाद है ds dot pushback array of I. तो इधर क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, सो वो बेसिकली array of I is basically my, जो भी यूजर ने array दिया है वो उसका एलिमेंट. तो मेरा जो एलिमेंट है उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ, एंड अगर वो इक्वल नहीं है, यानी वो डुप्लीकेट अगर नहीं है, देन आई विल एड इट टू माई ds, जो मेरा बेसिकली सबसेट है जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, राइट? उसमें मैं ऐड करूँगी. लेकिन if my array of I is equal to array of I minus 1, यानी अगर मेरा suppose I is let's say 5 and array of 5 is my 6th element and that's equal to my 5th element, यानी पहले का, तो वो कंटिन्यू करो मीन्स वो ऐड मत करो मेरे सबसेट में. ठीक है. यू मूव फॉरवर्ड एंड यू चेक द नेक्स्ट एलिमेंट. That's why I've written continue. And उसके बाद if it's not equal, then you add to my ds, which is basically nothing but let's say a set which stores my subset. ठीक है. तो वो एलिमेंट स्टोर कर रहा है, मतलब वो मैं ds is my सबसेट वाला डेटा स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या करो, उसके बाद आई एम अगेन कॉलिंग द सेम फंक्शन, यानी ये रिकर्सिव कॉल है, सॉल्व i+1 array ds and answer. i+1 मतलब वो अभी नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा. उसके बाद है ds डॉट पॉप बैक. अब पॉप बैक क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे हम पुश बैक लिखते हैं एलिमेंट पुश करने के लिए, हमने इधर पॉप बैक लिखा है क्योंकि ये बैक ट्रैक कर रहा है. बैक ट्रैक इन द सेंस, तो इधर क्या हो रहा है कि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए. ठीक है. तो यू कैन बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन just you can go and copy this code in your platform, coding ninjas platform. उसके बाद वो पॉप बैक वाला रिमूव करके देखो एक बार एंड जस्ट चेक कि तुम्हारा जो भी आउटपुट है वो क्या डिफरेंट आ रहा है. तो उस वे से तुम्हें आई थिंक ये समझ में आएगा कि व्हाई यू नीड दैट पॉप बैक, इंस्टेड ऑफ मी एक्सप्लेनिंग यू कि ये बैक ट्रैक हो रहा है, यानी हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए हमारे
you know सारे subsets में duplicate subsets नहीं चाहिए. So that's why we are writing that. Instead of that, you can just either write that sentence or you don't write that sentence and check the difference. Then I think you'll understand it. Moving forward to the next one, that is unique subsets वाला function. उसमें कुछ नहीं, हम n ले रहे हैं, n is the size and array ले रहे हैं यूजर से. उसके बाद हम sort कर रहे हैं. अब हम इधर sort क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसे कुछ बोला नहीं है कि sort करना है या नहीं करना है. But why we are sorting? Because if you see in our solve function, उसमें हम adjacent elements को compare कर रहे हैं, right? मैं suppose मेरा I है, मैंने बोला 5 पे, तो मैं I equal to 4 पे जो element है उसके साथ compare कर रही हूँ. तो अगर मेरा कोई array है, let's say 1 1 3 1 1 3 and 2, this is my array. ठीक है, तो अगर मेरा array obviously sorted order में तो नहीं होगा, तो suppose मेरा array है 1 3 1 2, तो मैं अगर adjacent element से compare करूँगी तो कभी वो equal निकलेंगे ही नहीं, right? That's why first I need to sort it in order to compare it for duplicates with the adjacent elements. तो फिर वो जब 1 1 2 3 हो जाएगा तब जाके मुझे 1 और 1 जब वो adjacent में रहेंगे, then I'll get it as duplicate and then I'll be able to discard it in my subset that I'm creating, which is ds, which I initialized it here, vector int ds. फिर उसके बाद answer create किया मैंने, again another data structure which holds all my subsets ds का, ठीक है. and उसके बाद solve, मैं इधर वो फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, दिस सॉल्व इज नथिंग बट अ रिकर्सिव फंक्शन, उसमें मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 0. इस केस में मैंने इंडेक्स को 0 से ही स्टार्ट किया है, देन array ds answer and then I'm returning answer which is nothing but my basically a set of all the unique subsets. Okay, so I have no, actually I will share these solutions with you and I want you to check that pop back वाला thing कि वो क्यों यूज़ किया है, so that तुम्हें समझ में आए ढंग से, ठीक है. So I hope आज का समझ में आया है problems and I hope that you are solving these problems on a daily basis. एंड बिगो पे अभी रोज़ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे. अभी एक वीक का गैप हो गया, बट वो गैप वाज फॉर यू गाइज टू प्रैक्टिस, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली अटेंड सच सेशंस. तुम्हें सॉल्यूशंस भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड गुड नाइट.